Namaskar and welcome to the Bihar Museum Biennale 2021. It gives me great pleasure to introduce the masterclass to you. This is not really a class, this is actually just an engagement with experts from different fields, from different disciplines, all of whom are connected to Bihar. Some are from Bihar, some are from outside Bihar, some just love Bihar. So this is all about Bihar, India and the world. The masterclass is part of the development of the Bihar Museum Biennale. As I started programming for the Bihar Museum Biennale 2021, so many ideas came from this wonderful state, the wonder that is Bihar. And the masterclass becomes an important aspect of the celebration of museum collections, an initiative which is part of the Bihar Museum. As part of the ongoing discussion on the evolving role of museum as a collective institution, we are exploring contemporary museum as a setting where research towards the preservation and storage of our collective cultural heritage can take place, where concepts of living history are explored and efforts towards knowledge documentation undertaken. As we question how museums of the day are increasingly becoming platforms of dialogue and representation through the Bihar Museum Biennale and the conference Bihar, India and the World, Connecting People, Connecting Cultures, we realized how important the learning component is in creating a thriving ecosystem of cultural knowledge. In the light of this, I have designed a series of masterclasses as part of our virtual programming of the Bihar Museum Biennale 2021, exploring the various facets of arts, performance, literature, film, music, criticism, and history. I'm delighted to introduce our experts and their respective masterclasses. The polyglot Purushottam Agarwal on vernacular modernity, introduced by Pooja Kumari. Good evening. On behalf of Bihar Museum Biennale 2021, I, Pooja Kumari, welcome you all to the masterclass session on vernacular modernity. Our expert for today's masterclass is Purushottam Agarwal. Purushottam Agarwal's academic work primarily consists of text-centered criticism and historiography of medieval and early modern Hindi poetry. For the last few years, via his interaction with Kabir and other Nirgun Bhakts, he has postulated and been engaged in an attempt to develop the concept of Deshraj Adhunikta, roughly vernacular modernity. This is because the trail of primary sources in Avdi, Braj, Rajasthani, and Sanskrit that he followed led him to question much of the received wisdom about the advent of modernity in South Asia. His approach to the problems of the historiography of Bhakti poetry can be gauged by his work on the Kabir-Ramanand relationship, to establish which he consulted the original Agastya Samhita. Research scholars under his guidance have worked extensively on original manuscripts pertaining to Pushtimar, Darya Sahib of Bihar, Sarvangis of Rajab, and Gopal Das, among others. He was a member of the Union Public Service Commission, India, from 2007 to 2013. Prior to that, he was a professor and chairperson at the Center of Indian Languages, Jawaharlal Nehru University. He has been a visiting professor at Cambridge and El Colegio del México. He's a British Academy Fellow. He's a British Academy Fellow at Wolfson College, Cambridge. He writes in English as well as in Hindi. His English book on Kabir is to be published in April. Now, I'd also like to inform the audiences that if you have any questions for Purushottam Agarwalji, please type them in the chat box and he will be taking these questions after the session. I hope you all enjoy the session. Namaskar.
तो देशज आधुनिकता, इसके बारे में बात मैं शुरू करना चाहता हूँ एक थॉट एक्सपेरिमेंट से, जो मैंने अपने एक नौजवान दोस्त के साथ किया। मैंने उनसे ऐसे ही बातों में पूछा कि अगर मैं मॉडर्न कहूँ, इफ आई से द वर्ड मॉडर्न, व्हाट डज इट मीन टू यू? तो उनका जवाब था कि टू कीप इन टच विद द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने आगे सवाल पूछा कि वर्ल्ड का मतलब, लेटेस्ट का मतलब? तो उन्होंने कहा कि वेल, द डेवलपमेंट्स इन वेस्ट। तो जो पश्चिम में लेटेस्ट है, उसके साथ जुड़े रहना, उसके टच में रहना, ये मॉडर्निटी की एक समझ है, एक पहचान है। इसमें जाहिर है कि ये इम्प्लाइड है कि मॉडर्निटी ओरिजिनली एक यूरोपियन फिनोमिनन है और दुनिया के बाकी समाजों में ये यूरोप से पहुंची, और जो भी समाज अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उन्हें यूरोपियन पैरामीटर्स पर, यूरोपियन पैमानों पर अपने आप को ढालना चाहिए या उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि मॉडर्निटी एक यूरोपियन एक्सपोर्ट है दुनिया को। ये एक प्रेवलेंट कॉमन सेंस है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन ये एक प्रेवलेंट कॉमन सेंस है। असल में मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी क्यों जरूरी है, मॉडर्निटी कैसे बढ़े, क्या हो, इस पर बातचीत का एक माहौल पिछली सदी के बीच में, इन दी मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी बना था यूरोपियन और अमेरिकन एकेडमी में, जबकि ये सवाल था कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज एज अपोज टू मॉडर्न सोसाइटीज, ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो हैं वो मॉडर्नाइज कैसे होंगी। तो एक तरफ थी ट्रेडिशनल सोसाइटीज यानी नॉन यूरोपियन सोसाइटीज, और दूसरी तरफ थी यूरोपियन या वेस्टर्न सोसाइटी। और मॉडर्निटी की पहचाने जाहिर है कि जो बहुत पैल्पेबल, सामने देखने वाली पहचाने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफरेंशिएशन, नेशन स्टेट से जुड़ी हुई नई कलेक्टिविटीज, और जो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट पहचाने हैं वो द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल, वर्नाकुलराइजेशन, यानी जो आपकी एकेडमिक डिस्कोर्स की भाषा है और जो लोगों के बोलने की भाषा है, उसमें ज्यादा दूरी ना हो, वो एक ही हो। तो ये सब जो है मॉडर्निटी के फीचर्स हैं, और इनकी तरफ सारी दुनिया को बढ़ना चाहिए। और भारत जैसे ट्रेडिशनल समाज, चीन जैसे ट्रेडिशनल समाज उस तरफ बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, इस सारी बातचीत के प्रसंग में ये बात आई कि भाई मॉडर्निटी इज अल्टीमेटली अ यूरोपियन इन्वेंशन और यूरोपियन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट which has reached other parts of the world mainly through colonization, and therefore आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए colonization with all its cruelties was a progressive historical phenomenon। आज भी अपने देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंग्रेजी राज के प्रति कृतज्ञ हैं, और जिनकी अंग्रेजी राज से केवल एक ही शिकायत है, वो ये कि देर से आए और जल्दी चले गए, हमें पूरी तरह मॉडर्नाइज किए बिना चले गए। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि भारत में अगर कोई भी ह्यूमन सोच है, कोई भी ऐसी सोच है जो मॉडर्न वैल्यूज को महत्व देती है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध यूरोप से है, वो यूरोप से आई है। तो इसमें अगर हम इस बात को एक थ्योरी में बदलें, तो हिस्टोरिकली मॉडर्निटी की पहचान बनती है अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, परंपरा से विच्छेद, और दूसरा ये कि इसका जन्म यूरोप में हुआ, इसका प्रोवेनेंस यूरोपियन है। और जाहिर है कि ये सारी की सारी थ्योरी, जैसा कि सुदीप्तो कविराज ने अपने उस विचारोत्तेजक लेख में संकेत किया है, जिसमें वो थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी पर विचार करते हैं, न्यू थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, और उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो मॉडर्निटी का थ्योराइजेशन है वो यूरोपियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पर आधारित है। ये बात सही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो हिस्टोरिकली माना जाता है कि मॉडर्निटी का मतलब है परंपरा से ब्रेक, और दूसरा ये कि इसका जन्म यूरोप में हुआ।
तो फिलोसॉफिकली वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी पहचाने हैं, थोड़ी गंभीरता से विचार करने पर वो कौन से पहलू हमें दिखते हैं जिनकी वजह से यूरोप में कोई जगह या हिस्ट्री में कोई पॉइंट आप आइडेंटिफाई करते हैं और पाते हैं कि ये चीजें शुरू हुई और इसलिए इसको हम मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं, ये बदलाव समाज में आए। फिलोसॉफिकली वो चीजें क्या हैं? तो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी चिंतन मैक्स वेबर ने किया है। आप लोग जानते हैं मैक्स वेबर के बारे में। और उन्होंने दो तीन चीजें मॉडर्निटी के लिए आइडेंटिफाई की। सबसे पहली चीज डिसएन्चांटमेंट, यानी मोहभंग। मध्यकालीन यूरोप में दुनिया का, मनुष्य का, ब्रह्मांड का जो एक नैरेटिव प्रचलित था, जो रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रचारित और स्वीकृत नैरेटिव था, उसके प्रति मोहभंग। बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण से समझें तो यह मान्यता कि धरती स्थिर है और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स, यह स्वीकृत मॉडल था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर पाया कि यह मॉडल सही नहीं है। ब्रह्मांड जियोसेंट्रिक नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, सूर्य केंद्रित है। यह डिसएन्चांटमेंट का एक प्रमाण था। और आप जानते हैं कि इसी के लिए गैलीलियो को रेप्रीमेंड किया गया, दंडित किया गया। जैसे कि वो एपोक्रिफल स्टोरी है कि गैलीलियो को, वृद्ध थे वो, कमजोर हो चुके थे शरीर से, तो उन्हें टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए और उन्होंने अपनी थ्योरी को रिकेंट कर लिया और कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई। लेकिन कहानी का मर्म यह है कि कहा जाता है कि ये सब कहते हुए भी वो धीरे से बुदबुदाए कि येट इट मूव्स। आप मुझसे कहलवा रहे हैं कि धरती नहीं घूमती, सच्चाई तो यही है कि वही घूमती है। तो दिस वाज डिसएन्चांटमेंट। इसी से जुड़ी हुई चीज, बल्कि इसी का एक हिस्सा है डिसैक्रलाइजेशन। ज्ञान में या सोच में एक तरह की प्रश्नातीत पवित्रता का जो सेंस था कि चर्च ने या चर्च फादर्स ने जो कह दिया उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो सेक्रेड। और जो सेक्रेड है, जो पवित्र है, वो किसी भी सवाल के परे है। आधुनिकता की दूसरी महत्वपूर्ण पहचान मैक्स वेबर के अनुसार है डिसैक्रलाइजेशन। पवित्रता की ऐसी जो एक रिस्ट्रिक्टिव धारणा थी जिसमें ये माना जाता था कि इन चीजों पर सवाल नहीं उठा सकते आप क्योंकि पवित्र है। आप जानते हैं कि रोमन कैथोलिक मान्यता में चर्च केवल एक संगठन का नहीं, बल्कि चर्च को बॉडी ऑफ क्राइस्ट माना जाता था। चर्च वो बॉडी थी, वो देह थी, वो संस्था थी जिसमें क्राइस्ट की, परमात्मा के पुत्र की आत्मा निवास करती थी। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के विरुद्ध आप कुछ कहें, ये नहीं चलेगा। सैक्रेड। तो डिसैक्रलाइजेशन की स्थिति पैदा हुई कि चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं पर लोग सवाल उठाने लगे, विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क एज वेल एज आउटसाइड रिलीजियस फ्रेमवर्क। विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क आप लोग मार्टिन लूथर का नाम जानते हैं, हम सब उनके महत्व को जानते हैं। उन्होंने सवाल उठाए चर्च के इंडल्जेंसेज देने पर, चर्च जिस तरह से बाइबल की और पूरी क्रिश्चियनिटी की व्याख्या करता था उस पर उन्होंने सवाल भेजे। उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, कोई उस पर चर्च ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने वो सवाल अपने नगर के चर्च के दरवाजे पर कील से ठोक दिए। और वो 49 सवाल जो हैं, 49 थीसिस या कितनी ठीक से संख्या मुझे याद नहीं है, तो माना जाता है कि एक तरह से वो सिंबॉलिक शुरुआत है मॉडर्निटी की यूरोप के इतिहास में। इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज जो आगे चलकर 18वीं सदी में इमैनुअल कांट ने कही। उन्होंने एक निबंध लिखा, छोटा सा निबंध है और बेहद महत्वपूर्ण निबंध है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, प्रबोधन किसे कहते हैं। और उसका पहला ही वाक्य है कि एनलाइटनमेंट इज कमिंग आउट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड ट्यूटेलेज। दूसरों पर, दूसरे वो चाहे आपके बुजुर्ग हो, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे वो आपकी परंपरा हो, उस पर जो एक जरूरत से ज्यादा निर्भरता है, उससे बाहर निकलना ही एनलाइटनमेंट। दूसरे शब्दों में,
अपने व्यक्तित्व का बोध, अपने सोच विचार की स्वतंत्रता को प्राप्त करना, और जाहिर है कि इस तरह के अर्थ में हर फ्रीडम के साथ एक जरूरी जिम्मेदारी आती है। फ्रीडम कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्यूटरलेस से जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने फैसलों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ये चीजें मॉडर्निटी की पहचान बनती हैं फिलोसॉफिकली स्पीकिंग। अब देखिए, सही तरीका ये है विचार का या ज्ञान को प्राप्त करने का कि ये जो फिलोसॉफिकली आइडेंटिफाइड फीचर्स हैं मॉडर्निटी के, अगर ये सचमुच केवल यूरोप में मिलते हैं तो हमें ये सहज रूप से मानना चाहिए कि मॉडर्निटी इज इंडीड एन यूरोपियन एक्सपोर्ट। सचमुच मॉडर्निटी यूरोप से ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची है, अगर ये फीचर्स हैं मॉडर्निटी के, और अगर ये केवल और केवल यूरोप में मिलते हैं। ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? क्या ये वास्तविकता है कि ये फीचर्स, डिसेक्युलराइजेशन, डिसएन्चेंटमेंट, कमिंग आउट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड ट्यूटलेज, क्या ये केवल यूरोपियन हिस्ट्री में मिलती है? क्या दुनिया के किसी और समाज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें ये फीचर्स आप आइडेंटिफाई कर सकें? दुर्भाग्य से कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें, और पिछले 40-50 साल में स्थितियों में काफी अच्छे बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी एकेडमिक्स में भी जो डोमिनेंट कॉमन सेंस है, स्टेटेड या अनस्टेटेड, वो उसी नौजवान दोस्त वाला है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि भाई ये सारे फीचर्स तो केवल यूरोप में हैं और इसलिए मॉडर्निटी तो यूरोप से ही आई। एक और मजेदार बात यह है कि मॉडर्निटी के जो बहुत पैल्पेबल फीचर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इनको निर्णायक मान लिया जाता है, और गैर यूरोपीय समाजों में मॉडर्निटी थी या नहीं थी, इसकी परख इस बात पर की जाती है कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन था या नहीं था। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये हम सुविधा से भूल जाते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन सही मायनों में शुरू हुआ 19वीं सदी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मॉडर्निटी नहीं आई। पहले एटीट्यूड्स में, अप्रोचेज में, आइडियाज में कुछ बुनियादी परिवर्तन आए, जिनके फलस्वरूप, और इसमें जाहिर है कि ऐतिहासिक संदर्भ के तौर पर स्प्रेड ऑफ कॉमर्स, व्यापार का विस्तार, तो इन चीजों के फलस्वरूप इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नॉट वाइस वर्सा। यानी इफ यू लुक एट यूरोपियन हिस्ट्री इटसेल्फ, industrialization follows the supposedly modern changes in attitudes and ideas, not vice versa. But quite interestingly, when you look at non-European societies, you want industrialization to precede the modernity. In Europe, you do not do that. So there is an inconsistency in the whole thing. आप बात कीजिए कि अगर जैसे मेरे जैसे लोग जब कहते हैं कि भाई भारत में मॉडर्निटी के कुछ बहुत साफ साफ उदाहरण दिखते हैं और उस पूरे समय को मीडिएवल या स्टैग्नेंट कहना बेकार है, तो खट से सवाल उठता है कि साहब इंडस्ट्री कहाँ थी, अर्बनाइजेशन कहाँ था? आप बात करते हैं मॉडर्निटी की। यूरोप में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री जो है वो 16वीं सदी में नहीं आ गई थी, 18वीं-19वीं सदी में आई। और यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉलोनियल प्लंडर का निर्णायक योगदान। इनफैक्ट जैसा कि विलियम डार्लिम्पल अपनी नई किताब में नोट करते हैं, लूट शब्द अंग्रेजी भाषा में 18वीं-19वीं सदी में प्रवेश करता है। जैसा कि अभी पिछले दिनों प्रकाशित उत्सव पटनायक ने अपनी पिछले दिनों प्रकाशित किताब में दिखाया है, एक तर्क संगत तथ्यात्मक अनुमान लगाया है कि अंग्रेजी राज के 200 साल में इतना पैसा भारत से खींचा गया कॉलोनियल प्लंडर के जरिए, जो आज के हिसाब से 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर। ये संख्या माइंड बॉगलिंग है।
और ये हम अच्छी तरह समझ लें कि यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और अगर उसी को मॉडर्नाइजेशन माना जाए तो मॉडर्नाइजेशन बिना कॉलोनियल प्लंडर के, बिना कॉलोनियल लूट के संभव नहीं था। खैर वो एक अलग बात है। सवाल ये है कि जो मॉडर्निटी के फीचर्स यूरोपीय इतिहास के आधार पर आइडेंटिफाई किए गए, वो दूसरे समाजों में, खास करके भारतीय समाज में दिखते हैं या नहीं दिखते। हम उन फीचर्स को एक बार फिर से याद करें और साथ में ये भी याद करें कि ये जो एक समझ बनी हुई है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में एक ब्रेक का संबंध है। मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं एक बात प्रपोज करना चाहता हूं कि चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे दुनिया की कोई भी जटिल और समृद्ध सभ्यता हो, हर परंपरा में आधुनिकता की संभावना होती है और हर आधुनिकता की अपनी एक परंपरा होती है। आधुनिकता और परंपरा के बीच में ब्रेक का संबंध नहीं होता। आधुनिकता कोई एक ऐसा विस्फोट नहीं है, और अगर वो विस्फोट है भी तो वो परंपरा के निरंतर्य में विस्फोट है। वो ऐसा कोई बैंग नहीं है जो एकाएक पैदा हो गया और एक कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आप पॉइंट आउट कर दें कि बस यहां से मॉडर्न और उसके बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी छोटी 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 चीजें आपको बदलती दिखती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेज होते दिखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि जैसे समाज में एक पूरा क्वालिटेटिव चेंज आ गया। और ये बात केवल इतिहास की नहीं है और केवल डिस्कोर्स और थ्योराइजेशन की नहीं है। अगर इन चीजों को समझना है तो आप अपने आसपास के, अपने ऐन निजी जीवन के अनुभवों को देखें तो इस बात को समझ सकते हैं। आज सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी लगभग पूरी तरह बदल दी। इंटरनेट की सर्वव्यापकता ने मानवीय संबंध बदल दिए। ये एकाएक नहीं हो गया। इंटरनेट आया मान लीजिए 30 साल पहले, भारत में आया 25-26 साल पहले या उसके बाद जब भी, लेकिन धीरे 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 आज हम देखते हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि इफ यू आर नॉट ऑन टीवी यू आर नोबडी। आज स्थिति यह है कि इफ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया यू आर प्रोबेबली नोबडी। आज बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर हो जाती हैं। सोशल मीडिया कैंपेन के आधार पर सरकारें बदल जाती हैं, बन जाती हैं। ये एकाएक नहीं हो गया और कोई एक तारीख तय करना असंभव है कि इस तारीख से। यही बात मॉडर्निटी के इतिहास पर भी लागू होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो फिर हमारे सामने सवाल यह है कि जिसको हम डिसएन्चांटमेंट कह रहे हैं, डिसैक्रलाइजेशन कह रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम टिटलेज कह रहे हैं, ये कहीं भारतीय इतिहास में आपको दिखता है या नहीं दिखता है? इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक और बात रखना चाहता हूं, उसके बाद इस सवाल पर लौटूंगा। मॉडर्निटी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई समाज मॉडर्न नहीं है तो क्या अंतर पड़ता है? कोई व्यक्ति मॉडर्न नहीं है तो क्या अंतर पड़ता है? क्यों महत्वपूर्ण है मॉडर्निटी? मॉडर्निटी महत्वपूर्ण इसलिए है कि मॉडर्निटी बुनियादी तौर से रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल और रेस्पेक्ट फॉर रैशनैलिटी पर आधारित है। फिलोसॉफिकली मॉडर्न एटीट्यूड या मॉडर्न अप्रोच इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को महत्व देता है और उसी के आधार पर उसके अच्छे या बुरे होने का असेसमेंट करता है। खुद अपने अनुभव से अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि फलां व्यक्ति केवल इसलिए नीचा है कि उसकी जात ये है या उसका जेंडर वो है, तो ऐसे व्यक्ति को अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछड़ा कहेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल के खिलाफ जाता है। किसी भी व्यक्ति का सम्मान या सम्मान ना करना इस पर निर्भर करना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में क्या है, उसकी निजी उपलब्धियां क्या हैं, उसकी नस्ल, उसका मजहब, उसकी जाति, उसका जेंडर, ideally speaking, ought to be irrelevant for making a judgment of him or her. This is a modern attitude. इसी तरह डिस्कोर्स में, डिबेट में कोई बात इसलिए
नहीं मान ली जाएगी कि वो किसी बड़े सेक्रेट सोर्स से आ रही है, कितने भी सेक्रेट सोर्स से आ रही हो, अगर वो रिगरस रैशनल एनालिसिस को स्टैंड नहीं कर सकती तो उस बात को मानने में हमें दिक्कत होनी चाहिए। रैशनलिज्म, रैशनल अप्रोच टू लाइफ, इस अर्थ में मॉडर्निटी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्निटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना मॉडर्निटी के सच कहा जाए तो ना आप डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं और ना ह्यूमन राइट्स की, जिन चीजों को हम आज एक तरह से वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक not only the democratic governance but democratic society for, if not for granted, then certainly as an ideal. Most people insist on some kind of idea of human rights. Neither of these would be possible in the absence of a modern outlook. इसलिए modernity important है। और अब मैं उस सवाल पर लौटूं। पहली बात जो मैंने आपसे कही दोहराऊं कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में किसी भी समाज में एब्सोल्यूट ब्रेक का संबंध नहीं होता। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन चीजों के विस्तार में जा सकें, लेकिन अगर आप यूरोप का भी इतिहास, यूरोप की भी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ध्यान से पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं। एक कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी में ही कुछ चीजें धीरे 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 बदलती रहती हैं और एक तरह का, जैसा मैंने कहा कि एक्सप्लोजन इन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा के निरंतर में विस्फोट। और दूसरी बात ये कि मॉडर्निटी के जो फीचर्स हैं उनको अब हम जरा देखें। अब यहां से आगे बढ़ने के पहले फिर एक थोड़ी सी बात करना जरूरी है। हम वर्नाकुलर मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में मॉडर्निटी के साथ वर्नाकुलर एडजेक्टिव लगाना क्यों जरूरी? वो इसलिए जरूरी है कि वर्नाकुलर, बावजूद इसके कि अंग्रेजी में शब्द के कुछ नेगेटिव लोड्स हैं और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं देश भाषा, मैं अंग्रेजी में भी देश भाषा लिखने का समर्थक हूं। अभी जो मेरी पुस्तक आ रही है अंग्रेजी में कबीर पर, कबीर द पोएट फिलोसोफर ऑफ अर्ली मॉडर्न इंडिया, उसमें मैंने वर्नाकुलर और देश भाषा दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। वर्नाकुलर इसलिए कि प्रचलित शब्द है और देश भाषा इसलिए कि मैं वर्नाकुलर की जगह देश भाषा शब्द को चलाना चाहता हूं। तो देश भाषा का मतलब है वे भाषाएं जो कोर्ट में और रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट में बोली जाती हो या ना बोली जाती हो, लेकिन जनता के बीच में बोली जाती थी, बोली जाती है। भारत के संदर्भ में ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रॉपर और ऑथेंटिक सेंस हासिल नहीं कर सकते अगर हम केवल संस्कृत, फारसी, अरेबिक और आजकल को शामिल करके कहें तो अगर केवल अंग्रेजी पर डिपेंड करें तो हम भारतीय इतिहास का प्रॉपर सेंस कभी हासिल कर ही नहीं सकते। जब तक हमें इस बात का सेंस ना हो कि क्या मराठी में हो रहा था, क्या बांग्ला में हो रहा था, क्या असमिया में, गुजराती में, कन्नड़ में और हिंदी में हो रहा था पिछले 500-700 साल में, 600 साल में, 800 साल में, you just can't have a proper sense of Indian history. You just can't make a head and tail of Indian history and cultural experience. आपके सारे नतीजे जो वर्नाकुलर की उपेक्षा करके या वर्नाकुलर को सेकेंडरी मानकर निकाले जाएंगे, मैं ये दावे से कहता हूं कि वो सारे नतीजे मिसलीडिंग और गलत होंगे और इसके मैं दसियों बल्कि सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं। So it is extremely important to look at the dynamics of vernacular languages, to have the sense of deep cultural changes, far-reaching changes in the attitudes in Indian society. It's extremely crucial. मैं आपको 2-3 उदाहरण दे के बात साफ करता हूं। पहली बात तो ये, यूरोप से तुलना करते हुए अगर चले, यूरोप में बाइबल का वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में अनुवाद होना बहुत क्रांतिकारी काम माना गया था। लूथर और काल्विन के पहले बाइबल केवल लैटिन में उपलब्ध थी और आम जनता बाइबल के लिए पादरियों पर निर्भर थी। प्रोटेस्टेंट
दौर में बाइबल का जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, जो उस समय वर्नाकुलर कहलाती थी लैटिन के पंडितों के द्वारा, उन यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुआ और इस तरह वर्ड ऑफ गॉड पर चर्च की मोनोपोली टूटी। लगभग इसी दौर में लूथर कबीर के जूनियर कंटेम्परेरी थे, काल्विन समकालीन थे लूथर के। तो इसी दौर में जब यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो रहा था, भारत में क्या हो रहा था? रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं, रामचरितमानस राम कथा का रिकंस्ट्रक्शन है, तुलसीदास की अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं, अपने आइडियाज के अनुसार। इट इज नॉट, आई रिपीट, इट्स नॉट अ ट्रांसलेशन ऑफ वाल्मीकि रामायण। सरला दास उड़िया में और विष्णुदास हिंदी में महाभारत के अनुवाद नहीं कर रहे, दोनों ने महाभारत नाम से रचना की। Neither of these is a translation of Mahabharata. It's a reconstruction of the story of Mahabharata. और आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा में वेद तो आज तक लोगों ने नहीं देखे, ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि वेद में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। रोजमर्रा का जो हिंदू धर्म है वो इन पुराणों के और इन महाकाव्यों के आधार पर चलता है। रामायण और महाभारत के आधार पर उनसे लिए गए नैतिक उपदेशों के आधार पर हिंदू अपना जीवन जीते आए हैं। और इस दौर में इन महाकाव्यों के देश भाषाओं में अनुवाद नहीं हुए, बल्कि इन महाकाव्यों की पुनर्रचना है। निर्गुण भक्त कवियों की अगर आप बात करें तो उन्होंने तो ये भी नहीं किया, उन्होंने महाकाव्यों तक के अनुवाद नहीं किए, पुनर्रचनाएं नहीं की, उन्होंने अपनी ही सोच विकसित की। उनकी एपिस्टेमोलॉजी इंडिपेंडेंट थी, वो अपने अनुभवों को एक नए तरह की एपिस्टेमोलॉजी में ढालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शब्दावली ली, कबीर का आप जानते हैं प्रसिद्ध है, कबीर की भक्ति में, कबीर की संवेदना में राम केंद्रित है, केंद्रीय है। लेकिन कबीर के राम, कबीर इस बात को बारंबार कहते हैं कि ना तो वो अवतार हैं, ना उन्होंने लंका के राजा से युद्ध किया था, ना वो अयोध्या के राजा के घर जन्मे थे। तो अनुवाद को तो आप छोड़िए, रिकंस्ट्रक्शन को तो आप छोड़िए, देयर वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। लेकिन प्रचलित कॉमन सेंस में लूथर मॉडर्निटी के जनक थे, कबीर मध्यकालीन भारत के कवि। विचित्र स्थिति, विचित्र विडंबना। ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी भगवत गीता का अनुवाद नहीं है, वो उसका विस्तृत भाष्य है और मराठी की महिमा को रेखांकित करता हुआ भाष्य। तो ये जो चीज है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ हम निकालें? मैं ये कहा करता हूं आमतौर से कि यूरोपियन प्रोटेस्टेंट, यूरोपियन मॉडर्निटी ने वर्ड ऑफ गॉड को वर्नाकुलर में लाने का काम किया। द इंडियन मॉडर्निटी एक्चुअली मेड गॉड टू स्पीक वर्नाकुलर। उन्होंने भगवान से संवाद की भाषा वर्नाकुलर कर दी। और ये भी एक रोचक बात है कि इन यूरोप these people had to fight against God as imagined by Roman Catholic Church. These Bhakt poets had their God on their side. दूसरी चीज, वर्नाकुलराइजेशन की बात हमने अभी देखी। दूसरी चीज, इंडिविजुअल। निर्गुण भक्त कवियों की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कबीर की बहुत मार्मिक पंक्ति है, जाति जुलाहा मत का धीर, हरख हरख गुण रमे कबीर। अब चूंकि मैं जाति का जुलाहा हूं, आपके हिसाब से तथाकथित शूद्र
या मुस्लिम होने के कारण और भी हीनतर कुल में मेरा जन्म हुआ है, आप मुझे मूर्ख समझते हैं, लेकिन मैं जाति का जुलाहा हूं, लेकिन मति का धीर हूं। मैं जानता हूं कि मेरी सोच सही है, मेरा विवेक पुख्ता है, और इसके आधार पर मैं भवसागर तर जाऊंगा। मैं भगवान का, हरि का, राम का नाम मगन होकर लेता हूं। जाति जुलाहा मति का धीर, हरख हरख गुण रमे कबीर। पूरी की पूरी निर्गुण भक्ति संवेदना को अगर आप देखें तो वो व्यक्तित्व की महत्ता का रेखांकन। मीराबाई एक स्त्री हैं, और जो स्त्रियों से एक्सपेक्ट किया जाता है उसके सर्वथा विपरीत सामाजिक व्यवहार करती है, और डंके की चोट कहती है कि चाहे कोई निंदो चाहे कोई बिंदो, चलूंगी चाल अनूठी, राणा जी मणे बदनामी लागे मीठी। ये व्यक्तित्व का आग्रह है। एक रामानुजन का लेख है, मैन, वीमेन एंड संत, और वो उसमें बताते हैं कि भक्ति संवेदना में ये अनोखी चीज होती है कि दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों, अपने अपने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हैं। पुरुष स्त्रियों की भाषा में प्रेम निवेदन करते हैं, कबीर से लेकर के पलटू दास तक आप देख लें, और स्त्रियां घर छोड़कर निकल पड़ती हैं, जो आमतौर से पुरुषों का प्रेरोगेटिव माना जाता है। अक्क महादेवी से लेकर लल्लदेव तक, कश्मीर तक आप देख लें। और इस तरह वो एक तीसरा ही जेंडर बन जाता है, संत। दैट इज व्हाट रामानुजन सेज। तो व्यक्तित्व का ऐसा जबरदस्त रेखांकन कि आप मुझे केवल मेरे जन्म के आधार पर जांचना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे विवेक, मेरे कर्म के आधार पर जांचें। तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। अगर जन्म के ही आधार पर फर्क है तो फिर यू मस्ट बी हैविंग मिल्क इन योर वीन्स, बट दैट इज नॉट द केस, यू आल्सो हैव ब्लड इन योर वीन्स। तो जन्म के आधार पर फर्क का क्या मतलब? फर्क है, फर्क होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन जरूरी है समाज में, तो जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। वो व्यक्तित्व और उपलब्धियों के आधार पर हो सकता है, जन्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। दिस इज एन एब्सोल्युटली मॉडर्न एटीट्यूड। और यहाँ इंडिविजुअल का मतलब, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम फिलोसॉफिकल लेवल पर मॉडर्निटी की बात करते हैं और इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल का मतलब सेल्फ सेंटर्ड नार्सिस्टिक इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल का मतलब समाज के प्रति इनसेंसिटिव व्यक्ति नहीं होता। इंडिविजुअल का मतलब अपने निजी कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति होता है, और ऐसा समाज स्वीकार करे, ये ऐसा समाज एक मॉडर्न समाज होता है। तीसरी चीज, अगर आप आगे चलें, डिसेक्युलराइजेशन। यहां डिसेक्युलराइजेशन की स्थिति यह है कि हम वेद को भी अनिवार्य रूप से प्रमाण नहीं मानेंगे, हम कुरान को भी अनिवार्य रूप से प्रमाण नहीं मानेंगे। हम प्रमाण अपने विवेक को और अपने अनुभव को मानेंगे। अपने अनुभव के आधार पर हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप दें या हम दें, विवेक के आधार पर बात करें, ये बिल्कुल मॉडर्न एटीट्यूड है। लेकिन जो धारणाएं बनी हुई है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, इंडियन सोसाइटी वाज ट्रेडिशनल, every society was traditional and is still traditional. As I told you, there is no modernity which does not have its own tradition, and there would hardly be any tradition which does not have an inherent potential of modernizing itself. लेकिन यहां जो चीजें हैं, जो दिखती हैं हमें साफ साफ, वो मॉडर्न एटीट्यूड्स की सूचक है, और वो चीजें आपको वर्नाक्युलर में दिखती हैं,
वो चीजें आपको संस्कृत और पर्शियन में नहीं दिखती। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। वो चीजें आपको भारतीय देश भाषाओं में दिखती। इसलिए मैं इस फ्रेज का इस्तेमाल करता हूं, वर्नाक्युलर मॉडर्निटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने समाज में अनोखे तो नहीं थे कहीं। ऐसा तो नहीं था कि ये अपने समाज से बहुत आगे बढ़े हुए लोग थे तो आज हमें अच्छे लगते हैं, आज हमें लुभाते हैं, लेकिन आप इनका अपना समाज इनकी कोई परवाह नहीं करता था। देवर जस्ट इग्नोर्ड, देवर मार्जिनलाइज्ड। नो, दैट इज नॉट द फैक्ट, नॉट एट ऑल। कबीर हो या तुकाराम, इनमें से कोई भी उस अर्थ में मार्जिनलाइज नहीं था, बल्कि ये खुद एक भारतीय समाज के डायनेमिज्म की सूचना देने वाली बात है कि ये जन्म से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं ये लोग, लेकिन ये समाज में व्यापक सम्मान प्राप्त करते हैं। कबीर के भक्तों और प्रशंसकों में राजे महाराजे और नवाब शामिल, बड़े व्यापारी शामिल। दादू दयाल के भक्तों और प्रशंसकों में व्यापारियों की, संपन्न व्यापारियों की लंबी जमात है, राजे महाराजों की, सामंतों की लंबी जमात है। तो दीज पीपल आर नॉट मार्जिनलाइज्ड। और ये पॉपुलर ऐसा नहीं है कि केवल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीच में पॉपुलर है, ये अपने समय के एलीट के बीच में भी पॉपुलर है, रेस्पेक्टेड। अनडाउटेडली परसिक्यूशन भी है, परसिक्यूशन भी है इन लोगों का। ऐसा नहीं है कि केवल सम्मान ही सम्मान है, परसिक्यूशन भी हुआ है। लेकिन इस बात पर भी तो जरा गौर कीजिए कि परसिक्यूशन उन्हीं का होता है जिनके विचारों से समाज में जो वर्चस्वशाली सत्ता है, जो हेगेमोनिक पावर स्ट्रक्चर है, उसको डर लगता है। आप किसी की किताब को मजबूर करते हैं तुकाराम को कि अपनी रचनाएं सारी बहा दीजिए नदी में, आप कबीर पर अत्याचार करते हैं, आप मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? अगर उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है, अगर 4 ही 5 लोग उनकी बात सुनने वाले हैं तो करते रहे, who bothers? The very fact that these people were persecuted is indicative of their widespread social influence. Otherwise, there would be no need to persecute. तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, जो पैल्पेबल इनकी बात की जाए, मिसाल के तौर पर अर्बनाइजेशन। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है या नहीं किया है कि भारत में ब्रिटिश राज को अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन का कुछ श्रेय दिया जाना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ये सब आंकड़े उपलब्ध हैं और आज से नहीं, वर्षों से उपलब्ध है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 खंडों में छपी थी 1982 में, तपन राय चौधरी, इरफान हबीब और धर्मा कुमार के संपादन में। उसके 2 खंडों में आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद तो और भी बहुत रिसर्च हुई है। वास्तविकता ये है कि कबीर के, और पॉलिटिकल सेंस में कहें तो आगे चल के अकबर के समय का भारत खास करके समकालीन यूरोप से अधिक अर्बनाइज्ड था। न केवल समकालीन यूरोप से अधिक अर्बनाइज्ड था, बल्कि भारत जब ब्रिटिश राज में था तो उससे अधिक अर्बनाइज्ड था। उस जमाने में भारत की 15% आबादी अर्बन आबादी कही जा सकती है, जो समकालीन यूरोप से अधिक थी। और ये केवल किसी एक हिस्से की बात नहीं है। आप पढ़िए उस समय के यूरोपियन यात्रियों के विवरण, चाहे वो विजयनगर के बारे में लिख रहे हो, चाहे वो बंगाल में मुर्शिदाबाद के बारे में लिख रहे हो, चाहे वो पटना या बनारस के बारे में लिख रहे हो, चाहे दिल्ली और आगरा के बारे में। इन सब शहरों को वो पाते हैं बहुत बड़े डायनेमिक शहर, अर्बन सेंटर्स, कॉमर्स सेंटर्स। तो ये एक मिथ है, एक माइथोलॉजी है। भारत माता सदा से ग्रामवासिनी नहीं रही है।
भारत माता ऐतिहासिक क्रम में दुनिया के अन्य समाजों की तरह धीरे धीरे अर्बनाइज हो रही थी और उसी अर्थ में मॉडर्नाइज हो रही थी। उसको जबरन डी अर्बनाइज किया गया, भारत को जबरन डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। अब अगर बात की जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया और पुनः कॉमन सेंस से इसको सोचना चाहिए, सहज रूप से किसी भी समाज में व्यापार का स्प्रेड पहले आता है। मांग इतनी अधिक बढ़ जाए कि दस्तकारी से पूरी ना हो सके, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मशीन की जरूरत महसूस होती है। मशीन में सुधार होते हैं, मशीन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने की जरूरत महसूस होती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन। मान लीजिए कि 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक का भारत या 19वीं सदी तक का भारत, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ हुआ, 19वीं सदी, मान लीजिए कि 16वीं से 19वीं सदी के बीच भारत का कोलोनाइजेशन ना हुआ, मान लीजिए कि 16वीं से 19वीं सदी के बीच भारत के अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेलिबरेटली डिसरप्ट ना किया गया होता, और फिर भी भारत 19वीं सदी में अंग्रेजों को, 20वीं सदी में अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज यात्री आता या यूरोपीय यात्री आता और उसी तरह अनइंडस्ट्रियलाइज्ड रूरल पॉपुलेशन मिलता, तो हम मानते कि हाँ, कुछ खोट था भारतीय सोच में, जैसा कि बहुत सारे यूरोपियन इतिहासकार मानते थे और अभी भी कुछ मानते हैं कि भाई वो तो कुछ भारतीय कल्चर में कुछ प्रॉब्लम है, भारतीय पर्यावरण में कुछ प्रॉब्लम है, भारतीय समाज बिना बाहरी इम्प्यूटस के, यानी बिना कोलोनाइजेशन के इंडस्ट्रियलाइज अपने आप को कर ही नहीं सकता था। ऐसा मानने वाले लोग अभी भी घुमा फिरा के कहते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हिंदुस्तानियों के डीएनए में कोई प्रॉब्लम थी, वो अपने आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते थे। ये बात हम मान लेते अगर 16वीं सदी के यूरोप और भारत की जो स्थिति थी वहां से शुरू करें, और 19वीं सदी में यूरोप तो इंडस्ट्रियलाइज हो जाता और भारत ना हो, विदाउट कोलोनाइजेशन, तब हम ये मान लेते। वरना ये अनफेयर कंपेरिजन, ये बड़ी अजीब बात है कि आप 19वीं 20वीं सदी के यूरोप की तुलना करते हैं 16वीं सदी के भारत से। तुलना करनी है तो 16वीं सदी के यूरोप की 16वीं सदी के भारत से कीजिए, और तब आप पाएंगे कि इंडिया वाज मच मोर अर्बनाइज्ड। और अगर आप 19वीं सदी के भारत और 19वीं सदी के यूरोप की तुलना करते हैं या 20वीं सदी के, तो मेहरबानी करके कोलोनाइजेशन को मत भूलिए। और कोलोनाइजेशन से जो प्लंडर, जो लूट और जो डिस्ट्रक्शन, एंड इट वाज नॉट merely a destruction of physical things, it was a destruction of cultural memories, it was a distortion of your history. उसको नोटिस में लिए बिना कैसे मॉडर्नाइजेशन की और अर्बनाइजेशन की बात की जा सकती है? मैं जो अभी आपसे कह रहा था, मैक्स वेबर बहुत सम्मानित इतिहासकार माने जाते हैं, समाजशास्त्री माने जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि उनका चिंतन किसी भी सोचने विचारने वाले व्यक्ति के लिए एकदम अनिवार्य है। उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि कैपिटलिज्म के विकास में प्रोटेस्टेंट एथिक्स का कितना निर्णायक योगदान है, और उसी क्रम में उन्होंने इस बात पर भी विचार किया है, और बाय द वे उन्होंने लिखा है कि अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में नहीं हुआ होता तो या तो वो चाइना में होता या हिंदुस्तान में होता। ये मानते हैं मैक्स वेबर, क्योंकि इकोनॉमिक स्थितियां ऐसी थी, स्प्रेड ऑफ कॉमर्स इतना अधिक था कि ये दोनों समाज भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए उतने ही तैयार थे जितना कि यूरोप। लेकिन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स नहीं था। प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है? बहुत संक्षेप में इस पर्टिकुलर प्रसंग में, प्रोटेस्टेंट एथिक्स वेल्थ क्रिएशन को बुरा नहीं मानता, भारतीय वेल्थ क्रिएशन से चिढ़ते थे। हिंदू, भारतीय से उनका आशय है हिंदू से, बल्कि हिंदू शब्द का ही उन्होंने प्रयोग किया है। हिंदू जो है वो बहुत अदर वर्ल्डली लोग थे। हिंदुओं में कोई भी इनोवेशन उनको उनकी जाति से गिरा देता था। पैसा कमाना उनकी कोई प्राथमिकता नहीं थी, बुरा नहीं माना जाता था। जबकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स में जो वेल्थ क्रिएशन का सम्मान है वो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स की परंपरा से जाके जुड़ जाता है।
दोस्तों, मैंने अपनी आने वाली किताब में, जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था आपसे, कबीर द पोएट फिलोसोफर ऑफ अर्ली मॉडर्न इंडिया, उसमें इस सवाल पर थोड़ी सी टिप्पणी की है। मुझे ताज्जुब होता है कि मैक्स वेबर जैसा विद्वान, और उनके बाद भी बहुत सारे विद्वान, हिंदू समाज और परंपरा के बारे में ऐसी बातें करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये वो समाज है जो लक्ष्मी की पूजा करता है, और लक्ष्मी की पूजा का पर्व जिसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व होता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। हिंदू परंपरा ने पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष सबसे अंत में आता है, उसके पहले अर्थ और काम आता है। और ऐसे समाज के बारे में आप कहते हैं कि टोटली अदर वर्ल्डली। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर चुटकी लेते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारतीय समाज, उसकी अपनी हिंदू परंपरा या उसकी अपनी इस्लामिक परंपरा या दीगर परंपराएं, वो अदर वर्ल्डली नहीं थी, अदर वर्ल्डली मीडिएवल क्रिश्चियनिटी थी। और प्रमाण सहित उन्होंने लिखा है। तो ये जो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखे बिना कोलोनाइजेशन द्वारा उत्पन्न किए गए आर्थिक लूट और सांस्कृतिक डिस्टॉर्शन को ध्यान में रखे बिना मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया भर के ना तो अतीत को समझा जा सकता है, ना वर्तमान को, ना भविष्य को। और मॉडर्निटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडर्निटी एसेंशियली इंडिविजुअलिटी, रैशनैलिटी, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड डिस्कोर्स, इन चीजों पर आधारित है। और अगर आप अपना वर्नाकुलर साहित्य देखें तो आपको ये चीजें वहां कदम कदम पे दिखेंगी, बिना खोजे मिलेंगी। और ऐसी स्थिति में ये मानना कि मॉडर्निटी एक यूरोपियन एक्सपोर्ट था, ये असंभव है। मैं अपनी बात के अंत में इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम का एक बहुत दिलचस्प कोट याद करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत मजेदार वाक्य लिखा है, बहुत सही वाक्य लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मॉडर्निटी इज अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ कंजक्चरल फिनोमेना। यानी कई डेवलपमेंट्स आपको दिखते हैं इधर उधर दुनिया भर के, उसमें उसके आधार पे आप कंजक्चर करते हैं कि ये चीजें हैं तो मॉडर्निटी यहाँ होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मॉडर्निटी इज अ ग्लोबल कंजक्चरल कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, इट्स नॉट अ वायरस which developed in Europe and then spread to other parts of the world. मॉडर्निटी कोई कोविड, कोरोना वायरस नहीं है कि चीन के किसी शहर में पैदा हुआ, वहां से दुनिया में फैल गया। एक ग्लोबल फिनोमिना। और अब धीरे धीरे इस बात पर लोगों का ध्यान जा रहा है और लोग इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मॉडर्निटी को इस एक्सपोर्ट मॉडल से निकाल करके एक ग्लोबल मॉडल के तौर पर देखा जाना चाहिए। तभी हम दुनिया भर में मॉडर्निटी के डायनेमिक्स को समझ सकेंगे और तभी हम भारत में वर्नाक्यूलर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वर्नाक्यूलर इज क्रूशल, एब्सोल्युटली क्रूशल, वर्नाक्यूलर मॉडर्निटी के डायनेमिक्स को समझ सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपका काफी समय लिया और अब मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।